Hello students, let us start with income computation and disclosure standards, that is ICDS, which is applicable for your examination. So now ICDS is compared with accounting standards. Like accounts mein we had studied the accounting standards, tax mein we are going to study ICDS. First of all, let us start with AS1. AS1 was disclosure of accounting policy. On the same lines, ICDS1 is there, which is on accounting policy. Now, there were many fundamental concepts in accounting policy like going concern, accrual basis, cost concept, etc. Now, what do you mean by conservatism or prudence? Conservatism and prudence was also one of the concept in accounting policies. Now, conservatism means showing more and more of losses and less of income, right? And on the same line, prudence was also there. Prudence is as good as conservatism, right? Okay, now the difference between accounting standard 1 and ICDS 1 is accounting standard recognizes the prudence concept, but ICDS fails to recognize the concept of prudence. What do you mean by that? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जितना ज़्यादा लॉस हो सकता है उतना ज़्यादा लॉस बताओ. आईसीडीएस बोलता है जितना कम हो सके उतना कम लॉस बताओ, या फिर जब लॉस होएगा तभी बताओ. व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, जैसे अपन को लगता है कि लॉस होने वाला है वैसे वी रिकग्नाइज दैट लॉस एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस. बट इन आईसीडीएस व्हाट दे आर टेलिंग इज जब भी लॉस एक्चुअली इनकर होगा तभी यू हैव टू रिकग्नाइज दैट लॉस. ओके, नाउ योर डाउट मस्ट बी कि ऐसा क्यों, right? So see, accounting standard is totally from accounts point of view and ICDS is totally from tax point of view. Now you just think from government का point of view. Obviously government would want कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टैक्स पे करो, बराबर है. अभी ज़्यादा टैक्स कभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनकम ज़्यादा रहेगा. इनकम ज़्यादा रहेगा या फिर कहने से एक्सपेंस कम रहेगा तभी. इसके लिए ICDS क्या बोलता है, जितना हो सके उतना एक्सपेंस कम दिखाओ एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनकम ज़्यादा बताओ, सो दैट गवर्नमेंट के पास में टैक्स ज़्यादा पहुँचेगा. ओके, सो दिस इज़ वन डिफरेंस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज में there is a concept of conservatism, prudence, materiality, etc. But these concepts of prudence and materiality is not at all recognized in ICDS 1. Now coming on to the second difference. Second difference थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. AS1 में अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज कर सकता है. अकाउंटिंग पॉलिसी का आई जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल जस्ट टू रिकलेक्ट. से फॉर एग्जांपल AS2 के हिसाब से आई वाज फॉलोइंग FIFO मेथड. Then all of a sudden I wanted to change my method of valuation of inventories to weighted average method. Correct? So now ऐसे कौन से 3 reasons थे when you can change the accounting policy? The first reason was if the statute or if the law requires that you have to change the policy, then you can change. Second wala was if accounting standard tells you to change the accounting policy, that was another reason. And third wala, if the change in accounting policy results in better presentation of financial statements. So only because of these 3 reasons you could change your accounting policy. ये किसके हिसाब से बोला हुआ है? This is as per AS1. अभी ICDS 1 ने bluntly एक statement दे दिया. The statement is only if there is a reasonable cause, only at that time you can change your accounting policy, not otherwise. वर्ड कौन सा इन लोगों ने एम्फसाइज किया किसके ऊपर? द वर्ड इज रीजनेबल कॉज. ओनली इफ देयर इज सम रीजनेबल कॉज देन ओनली यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी. अभी आपका डाउट आएगा मैम व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल कॉज? देन लेट मी टेल यू द टर्म रीजनेबल कॉज इज नॉट येट डिफाइंड. ओके, ठीक है. सो let us revise it again. There are 2 differences. First is concept of prudence and materiality is not at all recognized in ICDS 1, and second, you can change your accounting policy only if you have a reasonable cause to believe. Okay, ठीक है. चलो, let us start with the second one. थोड़ा सा याद करो AS2 किसके ऊपर है? AS2 is on valuation of inventories. Okay, same lines पे ICDS 2 आने वाला है. अभी AS2 के अंदर याद करो थोड़ा सा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. कौन कौन से मेथड्स सीखे अपन ने टू वैल्यू दी स्टॉक. वन फेमस मेथड इज FIFO मेथड. उसके अंदर आता है LIFO, देन वेटेड एवरेज,
देन थोड़ा सा याद करो, AS2 के अंदर देयर इज वन मोर मेथड दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड. स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो अपन यूजुअली यूज नहीं करते, वी यूज आइदर फीफो और वेटेड एवरेज, बट देयर इज अ मेथड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2 दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, अभी एकदम सिंपल डिफरेंस है. ICDS2 डज नॉट रिकग्नाइज दिस मेथड. ICDS2 बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट करके कोई मेथड ही नहीं है. दिस इज एज पर ICDS2. ओके, नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस इन ICDS2 इज whenever, suppose, say for example, a partnership firm was carrying on its business, तो normally अपना stock किस पे value होता है? Stock is valued at cost or NRV, whichever is lower. Okay? Now just imagine, तीन partners थे A, B, C, तीनों का partnership firm चालू था. All of a sudden assume करते हैं C का death हो गया, ठीक है? तो मतलब can I say the firm is dissolved as of now? उसके बाद में A एंड B डिसाइड करेंगे वेदर उनको बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना. बट एटलीस्ट जिस दिन उसका डेथ हुआ उस दिन द फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. ओके, नाउ AS2 क्या बोलता है? AS2 ये केस में, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन the stock has to be valued at cost or NRV whichever is lower. मतलब डिसोल्यूशन हो या फिर डिसोल्यूशन ना हो, the stock has to be valued at cost or NRV whichever is lower. इन ये कौन से केस में आएगा? इन AS2. लेकिन अभी ICDS2 क्या बोलता है? ICDS2 बोलता है ऐसे केसेस में जब भी कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है या फिर फर्म डिसॉल्व हो रहा है, एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट NRV ओनली. कंपल्सरीली स्टॉक किस पे वैल्यू करने का है? एट NRV. AS2 क्या बोल रहा था? कुछ भी रहने दो, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस चलने दो, डिसोल्यूशन चल रहा है, डिसोल्यूशन चल रहा है, तो स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर. लेकिन ICDS2 क्या बोल रहा है? नॉर्मल केसेस में आप करो, नॉर्मल केसेस में क्या करने वाला है अपन? कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर. लेकिन जब ऐसा डिसोल्यूशन होगा तो एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली. Okay, so two differences. First difference was ICDS2 does not recognize the method standard cost for valuation of inventories. Second method ICDS2 बोलता है डिसोल्यूशन के टाइम पे cost और NRV whichever is lower नहीं चलेगा, आपको NRV फॉलो करना पड़ेगा. मतलब the stock has to be valued at NRV as on the date of dissolution. Okay, चलो we'll start with the next AS. Next AS is AS7. AS7 is on construction contract. एंड उसी के लाइंस में आ रहा है ICDS3. ओके, अभी AS7 के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग याद होगा या फिर AS7 थोड़ा बहुत याद होगा, तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे टाइप ऑफ सम्स है जहाँ पे वी प्रिपेयर द मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जहाँ पे वी रिकग्नाइज द टोटल इनकम एंड प्लस द एक्सपेक्टेड इनकम, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन द क्रेडिट साइड. एंड डेबिट साइड में अपन क्या रिकग्नाइज करता है? जो भी एक्सपेंसेस अब तक हो चुका है प्लस जो भी एक्सपेंसेस अभी होने वाला है, मतलब द टोटल एक्सपेंसेस क्या मिल जाएगा वहाँ से अपन को? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाता है, बराबर. फिर वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपन चेक करते कितना % काम कंप्लीट हो चुका है, देन थोड़ा सा भी ट्रांसफर इट टू कंटिजेंसी, थोड़ा सा भी चार्ज इट टू PNL एंड सो ऑन. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल जहाँ पे आपने मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया एंड आपको लॉस आ गया. थोड़ा सा AS7 एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग याद करो. जब भी ऐसा कुछ होता है पूरा का पूरा लॉस इज इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड इन योर PNL अकाउंट. कौन से कंसेप्ट के हिसाब से रिकग्नाइज होता है? एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बराबर है. ये मतलब अभी थोड़ा सा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचो. एस्टिमेटेड लॉस भी आपने पूरा का पूरा कहाँ पे चार्ज कर दिया? PNL में चार्ज कर दिया. मतलब कहना है से आपका एक्सपेंस बढ़ गया या फिर लॉस बढ़ गया. लॉस बढ़ गया मतलब कहना है से आपका प्रॉफिट कम हो गया. प्रॉफिट कम हो गया मतलब टैक्स कम. तो अभी ये चीज़ ICDS को चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, ठीक है. तो ICDS क्या बोल रहा है? आप लॉस रिकग्नाइज करो, चलेगा, लेकिन लॉस कौन से प्रपोर्शन में रिकग्नाइज करो? इन प्रपोर्शन टू दी वर्क कंप्लीटेड. अभी आप बोलोगे मैम ये वर्क कंप्लीटेड मतलब क्या होता है? वो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मूला सिखाया था वो सब होता है क्या? नहीं. वर्क कंप्लीटेड मतलब द प्रपोर्शन या फिर द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड. एग्जाम्पल से मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ होने वाला है. अभी तक टिल डेट मेरा 70 रुपीज़ का खर्चा हो चुका है. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 100 रुपीज़. आज तक 70 रुपीज़ का खर्चा हो चुका है. मतलब इट इज़ अज्यूम्ड कि आज के दिन तक मेरा कितना % का काम हो चुका है? मेरा 70% का काम हो चुका है. कैसे आया 70%? द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज 70 रुपीज़ डिवाइडेड बाई द टोटल कॉस्ट अपॉन 100 इंटू 100. इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू कैलकुलेट द %.
तो जितना भी आपको मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर लॉस आया था वो पूरा का पूरा चार्ज करोगे या फिर उसका खाली 70%? उसका खाली 70% विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। क्लियर है ना? ऐसा क्यों किया? बिकॉज आईसीडीएस क्या बोलता है, जितना लॉस एक्चुअली हुआ है उतना ही रिकग्नाइज करो, पूरा का पूरा लॉस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू पीएनएल। अभी डाउट, आप बोलोगे नहीं मैम बाद में भी तो लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। चलेगा, बाद में रिकग्नाइज करो, लेकिन आज के दिन तक कितना परसेंट का लॉस रिकग्नाइज कर सकते हो आप? खाली 70%। क्लियर है ना? ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ द सेकंड डिफरेंस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टैक्स भी आने वाला है यहाँ पे ना। से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि मुझे 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बोला ओके नो प्रॉब्लम। वो बोला 100 लाख रुपीस लगेगा लेकिन 2 साल के अंदर आपको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके मिल जाएगा। आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने उसको साथ में एक और चीज़ बोला, अगर 2 साल के ऊपर गया तो मैं आपका 10 लाख रुपीस कट कर दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना डिसाइड हुआ था हम लोग का? 100 लाख। उसके बाद में मैंने बोला अगर लेट किया तो 10 लाख रुपीस कट। 10 लाख रुपीस कट मतलब शायद अगर उसने डिले किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90 लाख रुपीस। ओके, अभी AS7 या फिर अकाउंट्स में अपन क्या ट्रीटमेंट देता है? अज्यूम करते हैं अभी अपने एग्जाम्पल में कि उसने डिले कर दिया। ठीक है, डिले कर दिया मतलब कहने से मैंने उसके ऊपर 10 लाख रुपीस का पेनल्टी लगाया होगा। पेनल्टी लगाया होगा तो कहने से उसका एक्चुअल रेवेन्यू अभी कितना हुआ होगा? खाली 90 लाख रुपीस। करेक्ट। अभी आप मुझे थोड़ा सा बताओ, कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, मैं इनकम बोल के कितना रुपीस रिकग्नाइज करूं? आप बोलोगे मैम 100 लाख रुपीस तो उसको मिलने वाला था, माइनस अभी आप उसको 10 लाख रुपीस देने नहीं वाले हो, मतलब आप उसको खाली कितना दोगे? 90 लाख। तो वो अपने सेल्स अकाउंट में भी कितना दिखाएगा? खाली 90 लाख। बराबर है। ये किसके हिसाब से चलता है? एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये उसका एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रुपीस था? 100 लाख। आईसीडीएस क्या बोलता है? आईसीडीएस 3 कि क्रेडिट साइड में आप कितना दिखा सकते हो? खाली 100 लाख। अभी आप बोलेंगे मैम वो 10 लाख भी तो बेचारे का पेनल्टी है। अभी थोड़ा सा सेक्शन 37(1) याद करने का कोशिश करो। सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है वो? एनी एक्सपेंस इन नेचर ऑफ पेनल्टी इज टोटली डिसअलाउड। कुछ समझा मैंने क्या बोला? एनी एक्सपेंस इन नेचर ऑफ पेनल्टी इज टोटली डिसअलाउड। पीजीबीबी में आपने पढ़ा होगा, अगर सपोज आपने ब्राइब पे किया है किसी पुलिस वाले को या फिर किसी को भी, से फॉर एग्जाम्पल कोई एनी XYZ पर्सन, तो वो पेनल्टी जो भी आपने अगर पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया तो दैट गेट्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37(1). सेम 37(1) उन लोग ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में भी लगा दिया। क्या बोला? आपने उसका 10 लाख रुपीस क्यों चार्ज किया था? क्या बोल के चार्ज किया था? एज पेनल्टी। तो वो 10 लाख रुपीस क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीस विल बी डिसअलाउड। 10 लाख विल बी डिसअलाउड मतलब फाइनली उसका टैक्सेबल सेल्स कितना रुपीस होने वाला है? 100 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है ना? ओके, so this was the second difference and now third one, there is a concept of retention money. ठीक है, सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अज्यूम करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड था 100 लाख रुपीस। मैंने बोला था 2 साल के अंदर मुझे बिल्डिंग बना के दो। जब भी आप मुझे बिल्डिंग बना के दोगे तब आई विल पे यू से 90 लाख रुपीस एंड 1 साल और बिल्डिंग यूज करने के बाद में आई विल पे यू द बैलेंस 10 लाख रुपीस। मैं चेक करके देखूंगी, यूज करके देखूंगी बिल्डिंग कि हाँ भाई मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। उसके बाद मैं आई विल पे यू 10 लाख रुपीस। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता था? आप रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करोगे? कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअली अभी सेकेंड ईयर के एंड पे कितना मिला होगा? 90 लाख रुपीस। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी आप कितना रिकग्नाइज करते थे? ओनली 90 लाख। लेकिन आईसीडीएस को क्या लगेगा? आईसीडीएस को क्या चाहिए कि जितना ज़्यादा इनकम अभी का भी रिकग्नाइज हो जाए उतना अच्छा। तो फिर आईसीडीएस 3 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस includes the retention money. If contract price includes the retention money, तो as per ICDS या फिर टैक्स बुक्स में अपन को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट मनी कितना रुपीज रिकग्नाइज करना पड़ेगा? फुल 100 lakhs। इवन इफ कॉन्ट्रैक्टर को अभी खाली कितना मिला है? 90 lakhs। तो भी एज पर ICDS 3 यू हैव टू रिकग्नाइज द फुल कॉन्ट्रैक्ट मनी एंड कॉन्ट्रैक्ट मनी के डेफिनेशन के अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा? द रिटेंशन मनी। क्लियर है ना? सो देयर आर 3 डिफरेंसेस। फर्स्ट वाला डिफरेंस इज लॉस, खाली कितना रिकग्नाइज करेंगे? 100% लॉस या फिर जितना भी काम हुआ है, जितना भी काम हुआ। सेकेंड डिफरेंस वॉज पेनल्टी। अकाउंट्स में पेनल्टी चलता है, इट इज एन एक्सपेंस, लेकिन एज पर टैक्स इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंस। एंड थर्ड वाला क्या बोलता है ICDS 3 कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूड्स रिटेंशन मनी।
ओके, तो ज़्यादा अमाउंट अभी का अभी टैक्स हो जाए. ओके, सो वी आर डन विथ AS7 एंड ICDS 3. चलो, now let us start with AS9. AS9 किसके ऊपर था थोड़ा सा याद करो. इट वाज ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन. उसी के लाइंस में ICDS 4 आया. ठीक है, अभी AS9 के अंदर मेनली अपन 5 चीज़ें रिकग्नाइज करते थे. इनकम फ्रॉम 5 थिंग्स. सी, रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब टॉक्स अबाउट इनकम रिकग्निशन, करेक्ट. 5 थिंग्स, दैट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. ओके, फिर इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ओके, third thing was interest, fourth is royalty and last one is dividend. करेक्ट. सबसे पहला था गुड्स, सेकेंड इज सर्विसेज, थर्ड इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड. अभी उन्होंने क्या किया, डिफरेंस की अपन बात करें तो गुड्स के अंदर से जो भी इनकम आने वाला है, सेल ऑफ गुड्स से जो भी इनकम आने वाला है वो कभी रिकग्नाइज करने का अपन को जब इट इज़ रीजनेबली सर्टेन कि हाँ पैसा मिल जाएगा शायद आपको सामने वाले से. मतलब रीजनेबल रीजन रहेगा तो आप क्या करोगे, वो इनकम को रिकग्नाइज कर लोगे. दैट इज सेम इन AS9 एज वेल एज इन ICDS 4. ठीक है, अभी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ पे आ गया है, इन रेस्ट 4 आइटम्स. रेस्ट 4 आइटम्स वाला कौन सा वाला, सर्विसेज से जो भी इनकम होने वाला है, इंटरेस्ट से जो भी होने वाला है, रॉयल्टी से जो भी होने वाला है एंड डिविडेंड से. इसमें उन्होंने क्या बोल दिया है, रीजनेबल सर्टेनिटी होने दो या फिर मत होने दो, as soon as you get a right to receive all this, इन सब का इनकम आपको रिकग्नाइज करने का है. एक्चुअल पैसा मिलने का वेट नहीं करने का. अब तक अपन डिविडेंड कौन से बेसिस पे रिकग्नाइज करते थे, ऑन रिसीड बेसिस. अभी कौन से बेसिस पे करेंगे, कंपनी जैसे ही मुझे राइट दे देता है, राइट टू डिविडेंड, वैसे ही आई रिकग्नाइज द डिविडेंड इनकम इन माई बुक्स. ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज about service transactions. Service transactions मतलब I am availing some service from some XYZ person. Okay, I am availing service, तो कहने से मुझे उसको पे करना पड़ेगा. मैं उसको पे करूँगी तो कहने से सामने वाले को इनकम होने वाला है ना. जस्ट अज्यूम कि वो जो सर्विस है वो लंबा चलने वाला है, 3-4 साल 5 साल ऐसा चलने वाला है. ठीक है, अभी सामने वाले को जो भी इनकम होगा वो इनकम कैसे रिकग्नाइज करेगा. दैट इनकम विल बी रिकग्नाइज्ड एज पर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. जितना परसेंट काम हो गया उतना इनकम पूरा का पूरा एक साथ में रिकग्नाइज कर लो. जितना बाद में होने वाला है उतना बाद में करना. मतलब कौन से बेसिस पे कर रहे हैं अपन, ऑन प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. इसका एक ही रीजन है, द रीजन इज जितना काम हो गया उतना पूरा का पूरा इनकम शुड बी रिकग्नाइज्ड एज सून एज पॉसिबल. दिस इज गिवन इन ICDS 4. ओके, सो AS9 एंड ICDS 4 के अंदर देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट वाज सेम ट्रीटमेंट किस में रहने वाला है, इन केस ऑफ गुड्स, बराबर है. चेंज ऑफ ट्रीटमेंट किस में आ गया है, इन केस ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड. उसमें रीजनेबल सर्टेनिटी के लिए यू कैन नॉट वेट. एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सर्विस ट्रांजैक्शंस. इनकम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, ऑन प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. ओके, चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज ऑन AS11. AS11 किसके बारे में बात करता है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. उसके लिए साथ में ICDS 6 आ गया. अभी थोड़ा सा याद करो, कभी भी अगर कोई फॉरेन ब्रांच रहता है तो 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस आते थे. एक नॉन इंटीग्रल एंड दूसरा वाला वाज इंटीग्रल. इंटीग्रल में याद करो ना, अपन क्या करते थे, अपन जो भी ट्रायल बैलेंस दिया रहता था उसको कन्वर्ट करते थे इन द रिपोर्टिंग करेंसी. जो भी डिफरेंस आता था दैट डिफरेंस वाज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. इनकम रहेगा तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, एक्सपेंस रहेगा तो डेबिट साइड. ये किस में करते थे अपन, इंटीग्रल में. अभी नॉन इंटीग्रल मेथड थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. नॉन इंटीग्रल में जो भी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आता था अपन उसको ट्रांसफर करते थे टू अ रिजर्व अकाउंट, एंड दैट रिजर्व अकाउंट वाज नोन एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. द नेम ऑफ द अकाउंट वाज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, बराबर है. अभी ICDS 6 क्या बोलता है, ICDS 6 बोलता है ये जो FCTR अकाउंट था उसके अंदर नहीं डालने का, क्योंकि ये FCTR अकाउंट कहाँ पे दिखता था, इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है. उन लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी डिफरेंस है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करने का, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. मतलब इनकम है तो इनकम बोल के इमीडिएटली रिकग्नाइज हो जाएगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बोल के इमीडिएटली इट विल बी चार्ज टू P&L. देयर इज नो कंसेप्ट इन टैक्स ऑफ रिकग्नाइजिंग और ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट टू FCTR अकाउंट. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन AS11 एंड ICDS 6. Okay, so let us start with the next one. Next one is on AS12 and ICDS 7. AS12 थोड़ा सा याद करो ना. AS12 किसके बारे में बात कर रहा था, अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स. ठीक है, अभी थोड़ा सा याद करो ना, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला होता है
अपन AS12 के अंदर इनकम बोल के कभी रिकग्नाइज करता. It is recognized as income only after you have received the grant. That is one condition. And दूसरा condition was grant related जो भी conditions है अगर आपने fulfill कर दिया है उसके बाद ही you can recognize that income. बराबर है. मतलब दो चीज़ें होना चाहिए. एक तो ग्रांट रिलेटेड जो भी ग्रांट को जो भी कंडीशन अटैच्ड है वो सब फुलफिल हो जाना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज ग्रांट एक्चुअली मिल जाना चाहिए. ये दोनों फुलफिल हुआ उसके बाद ही यू कैन रिकग्नाइज दी ग्रांट एज इनकम इन योर बुक्स. ICDS 7 क्या बोलता है? ठीक है चलेगा, जो भी कंडीशंस अटैच्ड है उसको फुलफिल करो उसके बाद ही इनकम रिकग्नाइज करो. लेकिन सपोज आपने अब तक कंडीशंस पूरा फुलफिल नहीं किया है वो ग्रांट रिलेटेड, बट पहले आपको ग्रांट मिल गया बाय चांस, ऐसा अगर कोई भी सर्कमस्टांस होगा तो आपको वो ग्रांट का कंडीशन फुलफिल करने के लिए वेट करने का ज़रूरत नहीं है. एज सून एज द ग्रांट इज रिसीव्ड यू हैव टू रिकग्नाइज इट एज इनकम. मतलब ICDS में क्या हो गया, विच एवर इज अर्लियर, कंडीशन अगर पहले फुलफिल किया तो या फिर अगर ग्रांट पहले मिल गया तो जैसे ये दोनों में से कोई भी एक हो जाता है यू हैव टू रिकग्नाइज दैट ग्रांट एज योर इनकम. वापस से ICDS का सेम लॉजिक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो इनकम को रिकग्नाइज करो. ओके. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज थोड़ा सा गवर्नमेंट ग्रांट्स में याद करो. दो टाइप ऑफ ग्रांट होता था. एक तो जो अपन को एसेट के लिए मिलता था. अगर एसेट के लिए कोई भी ग्रांट मिलता था अपन क्या करते था, अपन बैलेंस शीट एसेट साइड में जाते थे, वो जो भी एसेट है उसके कॉस्ट में से लेस कर देते थे. बराबर है. ठीक है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ ग्रांट जो होता था दैट वाज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच वॉज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. बराबर है. कैपिटल रिजर्व में गया मतलब कहने से रिजर्व एंड सरप्लस में गया. रिजर्व एंड सरप्लस में गया मतलब बैलेंस शीट में गया, मतलब वो कभी भी टैक्स नहीं होगा. ठीक है. अभी ICDS 7 क्या बोलता है, नहीं यू कैन नॉट टेक इट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अगर इनकम मिला है यू हैव टू क्रेडिट इट टू PNL अकाउंट. ओके. अच्छा, लेकिन अब बोलोगे मैम फिर वो एसेट वाला अगर ग्रांट मिला होगा तो अभी भी आप क्या करोगे, उसको एसेट के कॉस्ट में से लेस करोगे. लेकिन अगर वो दूसरा वाला ग्रांट मिला होगा जो आप पहले लेके जाते थे इन बैलेंस शीट, उसको अभी कहाँ पे लेके जाने का है, PNL अकाउंट क्रेडिट साइड में लेके जाने का है, और उसको इमीडिएटली टैक्स करना. क्लियर है ना? ओके. अच्छा, नेक्स्ट वन इज ऑन AS13. AS13 was accounting for investments and ICDS 8. Next one is on AS13 accounting for investments and ICDS 8. अभी accounting for investments थोड़ा सा याद करो ना, किस में वैल्यू करते थे अपन इन्वेस्टमेंट्स को. से फॉर एग्जांपल शेयर्स है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी है लोअर है. ठीक है. अभी से फॉर एग्जांपल मेरे पास में अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है. अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास डिबेंचर्स है, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है एंड सो ऑन. अब तक AS13 में अपन क्या करते थे, एक एक स्क्रिप्ट लेते थे, एक एक इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते थे, सबको क्या करते थे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. नाउ जस्ट टेल मी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकग्नाइज कर रहा है, कौन से कंसेप्ट के हिसाब से लोअर पे रिकग्नाइज कर रहा है, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. बराबर है. अभी ICDS क्या बोलता है, आपको इसको एक एक स्क्रिप्ट वाइज वैल्यू नहीं करने का है, आपको इसको कैटेगरी वाइज वैल्यू करना है. कैटेगरी वाइज मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कंपनी के शेयर्स है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड. ठीक है. AS13 के अंदर अपन क्या करते थे, ए का विच एवर इज लोअर, बी का विच एवर इज लोअर, सी का विच एवर इज लोअर एंड सो ऑन. ICDS 8 के अंदर क्या करने का, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का टोटल, कॉस्ट का टोटल, मार्केट प्राइस का टोटल, विच एवर इज लोअर. अभी आप बोलोगे मैम उसमें क्या फ़र्क हो गया, एक ही तो बात हो गया. एक ही बात नहीं है. क्यों एक ही बात नहीं है, अगर आप कैटेगरी वाइज कर रहे हो मतलब ऑल दी शेयर्स टुगेदर, ऑल दी डिबेंचर्स टुगेदर, ऑल दी म्यूचुअल फंड का यूनिट्स टुगेदर, तो शायद कुछ चीज़ें विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड कुछ चीज़ें विल बी वैल्यूड एट NRV. पहले वाले AS13 में क्या हो रहा था, सब कुछ विच एवर इज लोअर पे हो रहा था. बराबर है. अभी क्या होगा, सब कुछ बैलेंस होके 2 फिगर्स आएंगे एंड 2 में से विच एवर इज लोअर. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लॉस तो रिकग्नाइज होगा ही होगा, साथ में थोड़ा सा इनकम भी रिकग्नाइज होगा. एंड इनकम रिकग्नाइज करना ये किसका लॉजिक है, ये ICDS का लॉजिक है. ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस. क्या डिफरेंस था, AS13 क्या बोलता है, एक स्क्रिप्ट अलग से वैल्यू करने का, एंड ICDS 8 क्या बोलता है, कैटेगरी वाइज वैल्यू करो. कैटेगरी में टोटल करो विच एवर इज लोअर, कैटेगरी में टोटल करो विच एवर इज लोअर. क्लियर है ना? ठीक है. नाउ द सेकंड डिफरेंस इज अबाउट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज. अभी अनलिस्टेड सिक्योरिटी समझ में आता है. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर द सिक्योरिटीज विच आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज.
अभी ICDS 8 क्या बोलता है, एकदम सिंपल कर दिया है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को किस पे वैल्यू करने का है, डायरेक्टली एट कॉस्ट। ये उसमें क्यों कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर नहीं अप्लाई करने का, क्योंकि ICDS क्या बोलता है, अगर कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो उसका प्रॉपर मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए ICDS ने क्या निकाल दिया, वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से मार्केट प्राइस निकाल दिया। वो क्या बोल रहा है, चुपचाप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैव टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लियर है ना, ठीक है। चलो let us start with the next one. Next one is on AS 16 and ICDS 9. अभी AS 16 किसके ऊपर था, AS 16 was on borrowing cost, ठीक है। अभी थोड़ा सा याद करो ना, borrowing cost के अंदर borrowing cost मतलब interest cost। interest cost को अपन capitalize करते थे if it is a qualifying asset। थोड़ा सा याद करो, अब जो भी new asset construct कर रहे हो, if that asset is a qualifying asset, तो फिर उसका जो भी interest cost है वो सब capitalize हो जाता था, बराबर है। अभी क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन क्या था, इफ एनी एसेट टेक्स मोर देन 12 मंथ्स टू गेट रेडी तो दैट एसेट विल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग एसेट। ये किसने बोल दिया था, एज पर AS 16। अभी ICDS 9 क्या बोल रहा है, क्वालिफाइंग एसेट का पूरा डेफिनेशन ही हटा दिया उसने, ऐसा कोई भी पीरियड को रिकग्नाइज ही नहीं किया, 12 मंथ्स हो, मोर देन 12 मंथ्स हो, कुछ भी होने दो। ICDS ने इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन एनी सच एसेट। अपन ने क्या किया होगा, एसेट अपन को कंस्ट्रक्ट करना था, इसके लिए अपन ने लोन लिया था, लोन के ऊपर वी आर पेइंग इंटरेस्ट। ICDS क्या बोल रहा है, द डेट ऑन विच द एसेट इज पुट टू यूज, उसके पहले तक का इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, पूरा का पूरा इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। 12 मंथ्स हो, 12 मंथ्स से ज़्यादा हो दो, कम हो दो, कुछ भी हो दो, इट विल बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन उसके बाद का इंटरेस्ट विल बी चार्ज टू PNL अकाउंट। मतलब डिफरेंस क्या था, AS 16 बोलता है क्वालिफाइंग एसेट रहेगा तो ही अपन को कैपिटलाइज करना। ICDS 9 या फिर इनकम टैक्स क्या बोलता है कि बिफोर पुट टू यूज कैपिटलाइज इट, आफ्टर पुट टू यूज चार्ज इट टू PNL अकाउंट। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, से फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया कोई एसेट परचेज करने के लिए, मैंने थोड़े टाइम के लिए क्या किया, वो जो भी बैंक से लोन लिया था उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, टेम्पररीली कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया होगा तो कहना है से उसमें से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इनकम या फिर कोई भी इनकम आया होगा। तो जस्ट अज्यूम मैंने बैंक से लोन लिया है 100 रुपीज़ का, ठीक है। मैंने कहने से मेरे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लोन्स दिख रहा होगा 100 रुपीज़। जस्ट अज्यूम ये 100 के ऊपर मैंने 10 रुपीज़ का इनकम अर्न कर लिया, बराबर है। पहले तक अपन एज पर AS 16 क्या करते थे, जो भी इनकम अर्न हुआ है वो जो 10 रुपीज़ का, उसको एडजस्ट कर देते थे अगेंस्ट दी लोन अमाउंट। मतलब अभी मेरा बैंक लोन कितना दिख रहा होगा आफ्टर सच एडजस्टमेंट, कहना ऐसे 90 रुपीज़ दिख रहा होगा। अच्छा, मतलब कहना ऐसे वो जो 10 रुपीज़ का इनकम है वो PNL में नहीं गया, वो कहाँ पे आया, बैलेंस शीट में लेस हो गया, बराबर है। अभी ICDS 9 क्या बोलता है, सिंस ये आपका इनकम है आप इसको लोन में से कम नहीं कर सकता, यू कैन नॉट रेड्यूस दैट 10 रुपीज़ फ्रॉम द लोन अमाउंट। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दिस 10 रुपीज़ टू योर PNL अकाउंट क्रेडिट साइड एंड इनकम बोल के रिकग्नाइज करना है। एंड अगर इनकम बोल के रिकग्नाइज करना है, कहना है उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है। सो यू गॉट द डिफरेंस। AS 16 के अंदर क्या करते थे अपन, लोन में से लेस करते थे। अभी ICDS के हिसाब से टैक्स में क्या करने वाले हैं अपन, उसको इनकम बोल के PNL अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाना वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज अभी मेरा कोई एसेट का कंस्ट्रक्शन चालू था, कोई ह्यूज एसेट था जिसका कंस्ट्रक्शन चालू था, बीच में से फॉर एग्जांपल कुछ फ्लड्स आ गया या फिर अर्थक्वेक हो गया या फिर ऐसा कुछ भी हो गया, मेरे को बीच में थोड़े टाइम के लिए अपना कंस्ट्रक्शन रुकाना पड़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट मुझे पॉज करवाना पड़ा, ठीक है। अभी अगर मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट बंद है तो क्या मैं बैंक को भी ऐसा बोलूँगी क्या, नहीं नहीं वो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट आई विल नॉट पे यू फॉर सो मेनी मंथ्स, ऑब्वियसली नहीं, बैंक तो मुझसे पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेने वाला है। अभी AS 16 क्या बोलता था, AS 16 ये जो भी बीच वाले पीरियड का इंटरेस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन चार्ज इट टू PNL, बराबर है। कहाँ पे चला जाएगा वो, इट विल बी चार्ज टू PNL। मतलब वो क्या बोल रहा था, वर्ड क्या यूज़ किया हम लोग ने, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब डू नॉट कैपिटलाइज, चार्ज इट टू PNL। ये कौन बोल रहा था, ये AS 16 बोल रहा था। अभी चार्ज इट टू PNL मतलब कहना है इससे मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा मतलब टैक्स कम, तो ये ICDS को चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा।
तो ICDS क्या बोल रहा है, ये जो भी एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट है इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैपिटलाइज दैट इंटरेस्ट. ओके, सो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट वाज क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन निकल गया. सेकेंड वाला वाज ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ऑन द टेम्परेरी लोन, वो लोन में से लेस नहीं होगा, दैट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. एंड द लास्ट वन इज द एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड नॉट चार्ज टू P&L अकाउंट. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट वन, दैट इज AS29. अभी AS29 किसके बारे में बात करता था, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज वगैरह के बारे में बात करता था, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी. ओके, उसी के लिए अभी ICDS 10 आ गया. ICDS 10 क्या बोलता है, दे हैव एक्टेड वेरी स्मार्टली. अभी थोड़ा सा याद करो ना, कंटिजेंट लायबिलिटीज अपन कभी रिकग्नाइज करते थे. कंटिजेंट लायबिलिटीज जैसे अपन को डाउट आता था कि ये लॉस होने वाला है, अपन इमीडिएटली उसको P&L में चार्ज कर देते थे. ICDS क्या बोल रहा है कि अगर आप श्योर हो कि वो लॉस 100% होने वाला है, व्हेन यू आर रीजनेबली सर्टेन कि लॉस होने ही वाला है, तभी आप क्या करोगे, यू विल रिकग्नाइज दैट लॉस. ये किसने बोल दिया, एज पर ICDS 10. आपको लॉजिक ऑलरेडी पता है. क्या लॉजिक है, AS क्या बोल रहा था, लॉस पता चलते ही रिकग्नाइज कर लो. ICDS क्या बोल रहा है, नहीं, लॉस को लेट रिकग्नाइज करो. जब आप रीजनेबली सर्टेन हो कि लॉस होने वाला है तभी वो लॉस को रिकग्नाइज करना है. क्योंकि ICDS क्या बोल रहा है, लॉस जितना लेट हो सके उतना लेट आपको लॉस रिकग्नाइज करना. एंड इनकम के केस में उल्टा हो गया. कंटिजेंट एसेट के केस में थोड़ा सा याद करो, AS29 क्या बोलता था, इनकम जब आप श्योर हो तभी उसको इनकम बोल के रिकग्नाइज करो. बराबर है, जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक इनकम बोल के रिकग्नाइज करने का नहीं. ICDS टोटली ऑपोजिट. क्या बोलता है, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल गया ना कि इनकम होने वाला है, इमीडिएटली रिकग्नाइज एज इनकम. आपको अगेन इसका लॉजिक पता है, जितना जल्दी इनकम रिकग्नाइज होगा उतना जल्दी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा. समझ में आ रहा है. तो ICDS का फुल फंडा इज recognize all the expenses only when you are sure and recognize all the other income जैसी आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए. उससे क्या होगा, इनकम ज़्यादा, लॉस कम, टैक्स ज़्यादा, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा जाएगा. समझ में आ रहा है ना. Okay, so this was all about ICDS. You can download the hand notes on ICDS from our website, that is www.commerceeduworld.com, from the home page.